अच्छा जी, guys, let's start without wasting much time. So today we are going to try O levels paper 2 variant 2 of May June 2025. ठीक है, अभी recent paper है as per new syllabus है and it's the calculator version. If this क्या कहते हैं from IGCSE, so you can expect this paper to be somewhere close to your paper 4 calculator version में. ठीक है, so let's start. So today again I am going to, because this is the first calculator version of the paper that we're going to do, so we'll mark the easier questions first जिसमें हमें ज्यादा रीडिंग टाइम नहीं चाहिए होगा. we'll decide कौन से ऐसे questions हैं जो आसान है और जिस पैटर्न में आपने पेपर को सॉल्व करना है. ठीक है, so I believe these parts are really easy. ठीक है, ये ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें आपको बगैर कुछ पढ़े बगैर कुछ समझे चीजें अटेम्प्ट करनी होंगी. So we'll mark these parts as those parts which are very easy and do not require much of an effort. We'll skip this part. Let's do this part and this part. ये हम easily कर सकते हैं. फिर जरा आगे चलेंगे, थोड़ा सा skip करेंगे. A lot of reading. Let's skip it for now. Maybe a lot of reading. Skip it for now. What do you think about this part? कुछ पढ़ने की जरूरत है? Does it require any reading time? I'm pretty sure no. इसको आप फटाफट कर सकते हैं without wasting much time. We'll mark all these questions. Again, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. Not sure what that has. So we'll do this part, ठीक है, and then let's move on. This is debatable. अगर किसी को circle properties अच्छा लगता है, so I'd suggest कर लो. अगर किसी को difficult लगता है, tricky लगता है, तो skip it. ठीक है, so it depends on your preference. I find it easy. I'll probably do it in the first go. फिर ये questions हैं, number sequences can be tricky, so we'll skip it for now. Skip it. Functions, very easy. Not much reading required. आप इसको easily attempt कर सकते हो. Statistics, skip it. Graph of functions, skip it. Algebra along with word problems, skip it. And then we have what? Mensuration, skip it. ठीक है, so हाँ ये हम कर सकते हैं. This is very easy. So इन सारी चीजों को हम कर सकते हैं. Now let's have a look at these questions. ये सारे ऐसे questions मैंने मार्क किए हैं जिसमें माशाल्लाह, that's great. चलो, so ये सारे ऐसे पेपर्स हैं. अच्छा, द फन फैक्ट अबाउट दिस पेपर, ठीक है, यू माइट आल्सो फाइंड दिस पेपर इजी बिकॉज ऑफ वन स्पेशल रीजन. नाउ गेस व्हाट दैट रीजन इज. वो रीजन ये है कि दिस वाज द फर्स्ट पेपर आफ्टर द सिलेबस चेंज. मई जून 2025 का ये पहला पेपर था आफ्टर द सिलेबस चेंज, व्हिच मींस ये फर्स्ट पैटर्न, न्यू पैटर्न के ऊपर पेपर था. तो हो सकता है एग्जामिनर ने आपको इजी पेपर दिया. ठीक है, सो let me see. Oh yes, my internet की signal is, so it has to be an issue. ठीक है, चलो अब बेहतर होगा assume. ठीक है, चलो let's go. So what I am saying is this paper was relatively easy also because of one reason. वो शायद ये reason हो सकता है कि this was the first paper as per new pattern. आपका जो new major changes आए थे syllabus में 2025 especially for O levels, वो इस साल इस time पे आई थी. May June 25 was the first batch जिनको कुछ idea नहीं था कि new type of questions कैसे आएंगे. Let's suppose जो sketching के new questions आए थे, जो graph of आपके पास उसके new questions आए थे, sets के new question थे, recurring decimals का new question था, आपके पास growth rate and decay का new कॉन्सेप्ट था. तो ये सारे कुछ आपके पास न्यू कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हुए थे, तो एग्जामिनर ने शायद हाथ हल्का रखा. सो दैट कुड बी वन रीजन एज वेल. ठीक है, सो नाउ टेल मी, अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करें, इट सेज के द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द पैटर्न विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4. व्हाट डू यू थिंक? क्या हम इस डायग्राम को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं? हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 का मतलब क्या है? सेंटर से एट एवरी 90 डिग्री इंटरवल यू आर गोइंग टू हैव a similar pattern. इसका मतलब क्या है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है तो यहाँ पर भी आपके पास क्या फॉर्म करना चाहिए? इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन वुड लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ तक बनेगी? फर्स्ट पार्ट में करा देता हूँ. स्ट्रेट लाइन वुड लुक लाइक दिस. ठीक है, वो कुछ इस तरीके से लगेगी, एक पॉइंट नीचे तक. ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास बॉक्स कहाँ पे शेड होगा. नाउ दिस वाज 1 2 3. अब मेरे पास शेडिंग कहाँ पे होगी? नाउ इफ यू हैव अ लुक, सो हर इसके एज पे हो रही है, राइट? सो दैट्स वन हिंट. एंड एज के कहाँ पे हो रही है बेटा? एज के हमेशा राइट साइड पे हो रही है, राइट? ऑन द राइट साइड ऑफ द एज. सो हम क्या करेंगे? इसके राइट साइड पे इधर शेड कर देंगे. ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी द शेडिंग. गुड जॉब. नाउ दिस, फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो good job. So for this question what you can also do, you can, अगर आपको still confusion है, so there is one trick that I told you for the outer sides. outer side boundary के लिए हमने एक trick की थी, so आप उसको वो भी apply कर सकते हैं. जिन्होंने classes attend किया, I'm sure they know. आप count कर लें सारे boxes को.
रोटेशनल सिमेट्री के ऑर्डर से डिवाइड कर लें, हर उस नंबर के बाद रीसेट करके यू कैन इजीली काउंट दोस बॉक्सेस, सो इट शुड बी वेरी इजी, ठीक है। अच्छा नाउ टेल मी, डू यू वांट मी टू ट्राई दीस क्वेश्चंस? हम स्किप करते जाएंगे अब क्वेश्चंस को। टेल मी, शुड आई मूव ऑन टू ए बी सी? इनमें से कोई स्पेसिफिक पार्ट करना है? पढ़ लो एक बार, आई गिव यू टाइम टू रीड ए बी सी। एनी डिफिकल्टी इन ए बी सी? ए बी सी में कोई भी डिफिकल्टी? गाइस कोई एक भी स्टूडेंट यस बोलेगा, आई डू इट फॉर हिम, ठीक है। सो यू हैव ऑप्शंस, बाद में टेंशन नहीं लेनी कि सर हम थोड़ा शर्मा गए थे। टेक योर टाइम, you all are attending these classes, so I'll respect each and every one. अगर किसी को A B C में प्रॉब्लम हो, so we'll do it, otherwise we'll skip. I think skip, ठीक है। चलो what about इसको करते हैं, चलो पार्ट बी करो। मुझे बताओ क्या ये हम कर सकते हैं 540 को स्प्लिट करने? एरिका के हमने पैसे बताने कितने रिसीव किए? Am I? No ना, I think I'm fine। चलो लो मेरी स्क्रीन गई अब। हाँ ठीक है, इट्स बैक। सो मुझे बताओ कि कैन वी डू दिस पार्ट गाइस? एरिकाज शेयर, कैन वी टेल एरिका शेयर, जो कि ये था, आई बिलीव दिस वाज, नो एरिकाज, या शी इज इन द मिडिल, सो कैन वी डू दैट? ठीक है, बट इफ आई एम नॉट श्योर इफ यू डूइंग इट प्रॉपर्ली, द नंबर्स यू स्टेटेड प्रॉपर्ली, 5 न्यूमरेटर में ही आएगा। आई थिंक वो चैट में लिखने की वजह से नॉट रिटन इट इन द राइट वे, बट व्हाट यू गोइंग टू डू, 5 शेयर हम मिले उसको आउट ऑफ 12 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 540, ठीक है। सो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ हैव अ लुक एट दिस पार्ट। एंगल्स वाले करना है, क्वेश्चन नंबर 4। हैव अ लुक, करा देता हूँ, चलो मैं करा देता हूँ। नाउ दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। बेटा यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, represented by arrows, that means ये 128 is going to be same as this, so y is going to be what? That is going to be 128। x मेरे पास कैसे आएगा? that forms a C shape वाली property, co-interior angle, so this is going to be 180 minus 128। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, जरा आगे करते हैं। स्किप 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 स्किप, ये वाला इज दिस इजी? कर सकते हैं हम इसको? गुड जॉब, इसको कर सकते हैं इजीली, वेरी इजी इंडाइसेस, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सिंपल सी फैक्टराइजेशन है, वी कैन इजी, नॉट फैक्टराइजेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन, हम इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस फैक्टराइजेशन? वांट टू गिव इट अ ट्राई और स्किप इट? जल्दी से बता दो, वांट टू गिव इट अ ट्राई? स्किप स्किप स्किप, चलो स्किप। सर्कल प्रॉपर्टीज में करा देता हूँ, ऑल्दो दिस इज इजी बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। इसमें हो सकता है you may face difficulty, so I'll do this for you guys now। अगर हम करते हैं, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में कहता है PQRS is a cyclic quadrilateral। क्या कह रहा है? PQRS is what? It's a cyclic quadrilateral। एग्जामिनर ने बहुत बड़ी हिंट दे दी है, पूरी एक प्रॉपर्टी का नाम उसने आपको लिख के दे दिया। दैट मींस यहाँ पे हो सकता है आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की, ठीक है। फिर कहता है APB is a tangent। APB is what? APB is a tangent to the circle at P। P पर आपके पास एक टेंजेंट फॉर्म हो रहा है, फाइंड द एंगल PQS कंसीडरिंग दीज वैल्यूज आर नोन। हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड PQS? गुड जॉब, कैसे होगा? PQS is going to be 37। अच्छा, ये प्रॉपर्टी फॉर्म कब होती है ये बता दो? alternate segment। alternate segment थ्योरम फॉर्म कब होती है ये? this forms when there is a C shape, but उससे भी पहले एक क्राइटेरिया है, टेंजेंट। शाबाश, टेंजेंट के वक्त फॉर्म होती है। सो टेंजेंट इज अ ग्रेट हिंट, ठीक है। जब टेंजेंट दिया, टेंजेंट की वजह से दो प्रॉपर्टीज हो सकती है। एग्जामिनर अगर टेंजेंट दे रहा है ना, सो ड्यू टू टेंजेंट यू कैन हैव टू प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट मे बी अप्लाइड टेंजेंट की वजह से? Now due to tangent what could be the first property? जो बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, टेंजेंट और रेडियस अगर बन गया तो क्या करते थे हम? गुड जॉब, इट्स ईदर गोइंग टू बी 90 डिग्रीज और ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक केस होगा। बेटा टेंजेंट या तो ना रेडियस है ना डायमीटर है, तो 90 डिग्रीज तो फॉर्म नहीं हो रहा। सो इसका मतलब है टेंजेंट की दूसरी प्रॉपर्टी हो अप्लाई होगी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। नाउ लेट मी रिपीट, दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग टेस्टेड अलॉट रिसेंटली। न्यू पैटर्न के हिसाब से पहले ये इतना फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं होती थी, इस वजह से टीचर्स might have not taught this to you as well in earlier years। पिछले सालों में शायद आपको इतना frequently ना पढ़ाया हो, ज्यादातर डिस्कस नहीं करते थे टीचर्स, बट नाउ दिस इज बीइंग टेस्टेड अ लॉट, सो आई विल जस्ट शो यू व्हाट दिस प्रॉपर्टी इज फॉर वंस, ठीक है। अच्छा, सर्कल प्रॉपर्टीज में सबसे लास्ट प्रॉपर्टी आई थिंक थी, हमने डिस्कस की थी समवेयर अराउंड हियर, लास्ट सेकंड लास्ट समवेयर हियर, यस। सो दिस इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जहां पे हम कहते थे इफ वी हैव अ टेंजेंट एंड अ सर्कल, अगर टेंजेंट हमारे पास विद इन द सर्कल एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है एंड दैट वन एज ऑफ द ट्रायंगल मीट्स द टेंजेंट, सो दैट्स गोइंग टू गिव यू अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। ट्रायंगल एंड देन टेंजेंट दे मीट एट वन एज, सो हम कहते थे यहाँ पे जस्ट ट्राई टू ड्रॉ अ सी शेप, तो बेटा सी शेप में टॉप वाला एंगल एंड द बॉटम एंगल एट द टेंजेंट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। सो सेम इज द प्रॉपर्टी over here if you have a look।
अगर आप देखोगे टेंजेंट की दो ही प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इट्स ईदर गोइंग टू बी 90 डिग्रीज और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. सो वी हैव दिस triangle and this shape. So यहाँ पे again you try to draw a C shape बच्चे, जहाँ पे top part of this C and this bottom angle at the tangent is going the same, where this would be 37. ठीक है. So ये काफी ज्यादा recently टेस्ट हो रही है. अब इसके बाद आपको कहते हैं find QRS. This is very easy. जल्दी बताओ what is that going to be? QRS कैसे करेंगे? QRS आपने बताया, I think you told me that answer to be 122 directly, but how are you going to find that? Is it 122? Let me check. But how are you going to find QPS? शाबाश. QPS कैसे find किया? Good job. कैसे find किया QPS? QPS कैसे find किया? 180 minus QPS. बिल्कुल शाबाश, genius. अच्छा, तो ये हम एंगल find कर सकते हैं. We can find this angle considering this to be a triangle. बेटा triangle का sum होता है 180 degrees. So you're going to do 180 minus 37 minus 85. So what is this part going to be? आपके पास QPS is going to be 180 minus 37 and 85. ठीक है. Minus 37 and 85. So you are telling me this is 58 and फिर आप दोबारा से 180 minus 58 करोगे तो क्या हो जाएगा? 122. चलो, good job. Let's move on. फंक्शंस बताओ. ये करने की जरूरत है. इजियर फंक्शंस है. अभी डोमेन रेंज कुछ भी नहीं पूछ रहा, बहुत आसान है. ये करने की जरूरत है. These are easier functions, so let's not waste time on this. But if you want me, I'll give it a try. Guys, कोई भी ऐसा सिंगल स्टूडेंट जिसने ये करना हो, बी कर ले. चलो बी करा देता है इनवर्स का. लेट्स डू बी पार्ट. ठीक है. बी पार्ट कह रहे हैं हमने इनवर्स ऑफ जी फाइंड करना है. ठीक है. सो हम क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ जी लेंगे. जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3. बेटा हमने 3 स्टेप प्रोसेस समझा था. इजी क्या था? रिप्लेस, सब्जेक्ट और रिप्लेस. ठीक है. 3 स्टेप प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है. सबसे पहले रिप्लेस करेंगे किसको? जी ऑफ एक्स को. बेटा जी ऑफ एक्स को आपने बनाना है y इज इक्वल टू 4x प्लस 3. फिर क्या करोगे? सब्जेक्ट. किसको सब्जेक्ट बनाना है? x को. जल्दी से बनाओ. तो क्या हो जाएगा? कहना है y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू व्हाट? x. बेटा आपका सवाल सॉल्व हो गया, सिर्फ रिप्लेस करना है दोबारा से. x माइनस 3 और 4. शाबाश, दैट इज करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? g इनवर्स ऑफ x. ठीक है. इनवर्स उसी का लगाना है. g इनवर्स ऑफ x वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? इसको रिप्लेस कर दो. सो इट्स गोइंग टू बी x माइनस 3 ओवर 4. वेरी इजी फॉर 2 मार्क्स. एनी कंफ्यूजन? ऑल गुड? ये बात समझ आई? आगे बढ़े. ठीक है. सो दिस इज व्हाट? x माइनस 3 ओवर 4. आगे बढ़ो. चलो, लेट्स डू मोर इजियर क्वेश्चंस. आई थिंक इजियर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट खत्म है. सो ये वाला कर सकते हो? करा दूं? जल्दी से देखकर बताओ. कॉमन एलसीएम लेना है. डू यू वांट टू सॉल्व दिस और नो? स्किप. चलो स्किप. सो आपने फर्स्ट ट्राई में ऐसे सारे इजियर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने, सो दैट यू गेन सम कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द पेपर. एंड देन वंस यू आर डन विद दीस इजियर क्वेश्चंस, देन यू आर गोइंग टू गो वन बाय वन. ठीक है. अब आप पढ़ोगे. एंड द गुड पार्ट इज अभी भी पेपर में इतने ज्यादा इजी क्वेश्चंस होंगे, बट उसमें शायद थोड़ा सा रीडिंग टाइम रिक्वायर्ड था, सो आपने स्किप किया था. राइट. सो लेट्स सी. लेट्स मूव ऑन फ्रॉम स्टार्ट नाउ. अब देखो हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बाय नाउ. ठीक है. लेट्स सॉल्व पार्ट 3. जरा 3 को देखो क्या कहता है. कहता है राइट द रेशियो ऑफ 175 मिलीलीटर्स विद रिस्पेक्ट टू 2.5 लीटर. इसको कैसे लिखेंगे? नाउ कीप इन माइंड, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मेक श्योर दैट द यूनिट्स आर सेम. ठीक है. यूनिट्स को लाजमी सेम करना है. नाउ टेल मी. हाँ, अब देखो गुड पार्ट क्या है? कैलकुलेटर वाला पेपर है, कोई ख्वारी करने की जरूरत नहीं है. बेटा हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर में मिलीलीटर्स कितने होते हैं. ठीक है. 1 लीटर में मिलीलीटर्स होते हैं 1000. गुड जॉब, 1000 होते हैं. सो बेटा ये क्या हो जाएगा मेरे पास? कहना है 175 रेशियो 2.5 इंटू 1000. तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 3 मूव हो जाएंगे, 1 2 और 3. सो दिस इज गोइंग टू 2500. 175 रेशियो 2500. क्या करना है? कुछ भी नहीं करो. कैलकुलेटर में 175 अपॉन 2500 कर दो. ठीक है. क्या करना है? 175 अपॉन 2500. जैसा आंसर फ्रैक्शन में आएगा उसको एज इट इज कंसीडर कर लो. करेक्ट. 7 ओवर 100 आ रहे कैलकुलेटर में. चेक इट इफ यू आर गेटिंग 7 ओवर 100. 175 ओवर 2500. इसका मतलब ये क्या होगा? ये 7 के इक्विवेलेंट होगा और ये 100 के इक्विवेलेंट होगा. कैलकुलेटर वर्जन है, बिल्कुल ख्वारी करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इसको कन्वर्ट करना था, इतना सिर्फ दिमाग लगाना था बस. ठीक है. क्या हुआ? चलो इसके बाद क्या है, ये पार्ट करते हैं. चलो कहता है कन्वर्ट 6.1 मीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर. स्टूडेंट इसमें जरा सा कंफ्यूज होते हैं. ऑल्दो दिस इज फॉर 1 मार्क एंड वेरी इजी. नाउ टेल मी व्हाट इज द कन्वर्जन फॉर मीटर्स एंड सेंटीमीटर स्क्वायर्स. I am lagging.
Am I, guys? Hmm. I don't have much running. अच्छा चलो, आई होप इट्स बेटर, थोड़ा बेहतर है, अगर नहीं तो फिर मुझे बताना पड़ेगा अंदर, इंटरनेट हल्का से यूज करें। ऑल गुड, कैन यू हियर मी? यस, चलो, आई होप इट्स बेटर गाइस। चलो, इफ इट्स बेटर, जरा देखो हमने क्या करना है बेटा, मीटर से सेंटीमीटर की पहले कन्वर्जन समझो क्या होती है। From meter to centimeter, we have learned that this is supposed to be multiplied by 100. But the problem is, this is meter square into centimeter square. That means it's supposed to be multiplied by 100 का square. So क्या होगा? This is going to be 6.1 multiplied by 4 zeros, and you can solve this easily. ठीक है? So this is going to be 61 and then 61 and then 3 zeros I assume. ठीक है? So you can easily solve this because you're moving 4 decimal places. चलो आगे बढ़ो। अब जरा क्या कहता है? कहता है इन अ सर्वे स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू चूज देयर फेवरेट टाइप ऑफ मूवी, द टेबल शोज द रिजल्ट्स। ठीक है, हमें टेबल जो है ना कोई रिजल्ट शो कर रही है। कहता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ये गिवन है हमारे पास। कहता है कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टूडेंट चूजिंग थ्रिलर। बेटा थ्रिलर की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। सो सबसे पहले मुझे बताओ कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने क्या समझा कि किसके इक्विवेलेंट होती है? दिस इज इक्विवेलेंट टू Favorable over total. फेवरेबल ओवर टोटल। ठीक है, so this is equivalent to favorable over total, but do we know its frequency? क्या इसकी frequency पता है थ्रिलर की हमें? अब्दुल्ला नबीज, राइट? नो, सो बेटा हमने एक और चीज समझी थी, आपने फेवरेबल ओवर टोटल तो सही बताया, बट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस चीज के बराबर होती है? एक और कैलकुलेशन, एक और टर्म के बराबर होती है। टोटल 1 होता है, बट हमने कहा कि दिस इज कैलकुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर एज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिसमें हमने कहा कि दिस टोटल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस सम ऑफ ऑल द अदर केसेस, 1.0.1 प्लस 0.35 प्लस 0.3। सो जिससे आपके पास आंसर क्या आएगा? 6575, एंड दैट इज गोइंग टू बी 0.25। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही है। आगे देखो, कहता है 500 स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन द सर्वे। हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने बेटा आपको। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हो, सो उसकी एक स्टूडेंट अगर टोटल था, सो 0.35% उसका 0.35 उसकी प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट मींस। तो बेटा एक में से द चांस इज गोइंग टू बी 0.35। तो बेटा 500 में क्या होगा? 500 के लिए सिंपली गोइंग टू मल्टीप्लाई 500 टाइम्स 0.35, एंड शी सेज, ज़ैनब सेज द आंसर इज गोइंग टू बी 175। और जैनब आपने चैट में लिखकर फंसा लिया अपने आप को। ये बताओ इतने टाइम से किधर गायब थी आप? वेयर वर यू सिंस ऑल दीस डेज? इट सेज द नेक्स्ट पार्ट सेज क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से बताओ क्या इशू था? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्रिस वांट्स टू एक्सचेंज $350 फॉर यूरोज एट द बैंक। ठीक है, $350 को यूरोज में कन्वर्ट किया। फिर कहता है द बैंक ओनली गिव्स यूरोज इन द मल्टीपल ऑफ $5 उसके। ठीक है, यूरोज में। ठीक है, बैंक आपको सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 में देता है पैसे। कहता है द एक्सचेंज रेट इज गोइंग टू बी व्हाट? $1 इज 0.92। ठीक है, सो $1 इज इक्वल टू 0.92। कहते कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूरोज ही रिसीव्स फॉर हिज चेंज। तो बेटा जरा इस बात को समझो, हमें पता है कि $1 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी यूरोज? दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.92। सो जल्दी से बताओ 350 किसके बराबर होगा? दैट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू x। तो बेटा x की वैल्यू आएगी 350 टाइम्स ऑफ 0.92। तो आपके पास आंसर आया 322। व्हाट 322? हमने क्या फाइंड करना था? यूरोस। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 322 यूरोस। बट द थिंग इज कि आपको बैंक पैसे कैसे देता है? ओनली इन मल्टीपल ऑफ 5। सो इज दिस अ मल्टीपल ऑफ 5 गाइस? यस और नो? इज दिस अ मल्टीपल ऑफ 5? इट इज इंट, राइट? तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है तो दो ऑप्शन हो सकते थे, या तो 325 मिलते, ठीक है, या तो 325 मिलते या 320 मिलते। सो कौन सा वाला चांस ज्यादा होगा? 320। ज्यादा तो कोई बैंक नहीं देगा, पागल तो नहीं है बैंक। से 320 कंप्लीट यूरोस देगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसने कितने यूरोस पीछे बच गए बेटा? 2 यूरोस बचे पीछे। ठीक है, सो 2 यूरोस वर लेफ्ट, जो उसका चेंज है। बट हमें चेंज कैसे बताना है? डॉलर्स में। अब क्या करेंगे? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? क्या करेंगे अब? वी आर गोइंग टू
I think so. I think so. So what are we going to do? We are going to convert it again. ठीक है, हम दोबारा से convert करेंगे और method क्या होगा? $1 is equivalent to 0.92. So बेटा हमने क्या find करना? अब हमने 2 euros given हैं जो हमें ये इसकी value find करनी है. So this is going to be y is equal to 2 over 0.92 and the answer turns out to be what? 2.17 I guess. ठीक है. So $2.17. Is this part clear? ठीक है, आगे बढ़े. कहता है कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन. सोचिए, क्वेश्चन भी हम छोड़ चुके हैं पीछे. कितना आसान था, बताओ कैसे सॉल्व होगा? वेरी इजी. Yeah, I don't think I even need to solve this. कैसा ऑक्टागन है, रेगुलर है, इंटीरियर एंगल फाइंड करना है. सो n minus 2 times of 180 divided by n, where the value of n is what? Value of n is going to be octagon की क्या होगी? Good job, good job, good job. It's 8. ठीक है, octagon is 8, so you just plug in 8 over here and 8. सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यूज निकालनी है और सॉल्व कर लेना. वेरी इजी. ठीक है, इट्स 135. चलो कर लेते हैं 135. व्हाट डज द नेक्स्ट पार्ट से? सी, नेक्स्ट पार्ट कहता है बेटा कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल. सो इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है? सम तो नहीं कहा उसने, टोटल तो नहीं कहा, तो क्या कहना चाह रहे हैं इंटीरियर एंगल में? ठीक है, सो इंटीरियर एंगल एक ही होगा ना, रेगुलर पॉलीगॉन, ऑक्टागन है, पॉलीगॉन है. उसने सम भी नहीं कहा. अगर उसने सिंगल एंगल भी नहीं कहा तो उसने सम भी नहीं कहा. सो दिस स्टिल मींस के वो आपसे सिंगुलर एंगल ही पूछ रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ऑन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी प्राइम. बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? डू आई नीड ए इंटरसेक्शन बी और आई डोंट नीड दिस? I don't need this. What is A intersection B over here? What does intersection mean? It is the middle part, common part between these two, which means this region. ठीक है, but do I need this? I don't need this. So इसका मतलब क्या, actual shading में क्या होगा? बाहर वाले सारे पार्ट होंगे except for this. ठीक है, except for this you're going to shade each and everything and you're going to move this. I hope this part is clear. ठीक है, जरा आगे देखो क्या कहता है. कहता है in a class of 22 students, 12 play the piano and 9 play the guitar, 6 do not play the piano or the guitar. ठीक है, अच्छा. सो कहता है 12 प्ले पियानो, आपके पास पियानो है, गिटार है, क्लास 22 स्टूडेंट्स के, टोटल 22 है. पहले आपने बाहर वाले सारे फिल करने हैं. 6 डू नॉट प्ले पियानो और द गिटार, दैट मींस इट्स गोइंग टू कम आउटसाइड इन नाइदर ऑफ द टू वाले केसेस. ठीक है, दोनों ही नहीं है. अब आपने बताने हैं इसके आंसर्स. सो मुझे बताएं जरा कि अगर 12 पियानो वाले हैं, सो कैन आई से ओनली दिस रीजन इज 12? डज दिस मेक सेंस और इज दिस इनकरेक्ट? व्हाट डू यू हैव टू से? What do you have to say? It's incorrect? Yes. Good job. So this is a very good job. This is a very common student mistake. ठीक है, स्टूडेंट्स हमेशा जो है ना 12 सिर्फ इस रीजन को लिख के आ जाते हैं. बेटा पियानो सिर्फ ये नहीं था, पियानो वाज द होल सर्कल, दिस इज पी, द होल फर्स्ट सेट. सो बेटा दिस होल थिंग रिप्रेजेंट्स 12 फॉर दिस केस. ठीक है, सो हम इस वैल्यू को कॉमन हमें नहीं पता जो कि x p और g दोनों को रिप्रेजेंट करता है. सो वील राइट इट इज x. सो दिस रीजन वुड बी नोन एज 12 माइनस x. बेटा इसी तरीके से 9 गिटार वाले थे, इसका मतलब दिस होल रीजन इज रिप्रेजेंटेड एज 9. तो इसको अगर हम रिमूव करेंगे दिस वुड बी 9 माइनस x. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अब इन चारों रीजन्स को सेपरेटली ऐड किया एंड यू सम इट टू 22 बिकॉज़ द टोटल वाज सपोज्ड टू बी 22. सो 12 माइनस x प्लस 9 माइनस x plus x is equivalent to 22 and you tell me the answer is going to be 5. So I'm trusting you. आपके पास x 5 है, हमने फाइंड क्या करना था? टू प्ले बोथ. तो बेटा यही प्ले बोथ था जो कि x था एंड आपने यहाँ पे लिख लेना 5. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू. आई बिलीव दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ सेट्स. अच्छा, क्वेश्चन 11 पढ़ें, ये भी आसान है. क्या फाइंड करना है? फाइंड क्या करवा रहे हैं हमसे एग्जामिनर? जल्दी से देखो, व्हाट इज द एग्जामिनर डिमांडिंग? एग्जामिनर इन क्वेश्चन में वर्डिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आपको. तो जो आपके पास सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, ग्रोथ रेट के डीके, उसको पढ़ना तमीज से. ठीक है, शाबाश. आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है? नहीं, प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट. ए पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, ए पूछ रहा है. गुड जॉब. द टोटल वैल्यू और ए, दैट इज करेक्ट. व्हाई इज दैट? सो गौर से पढ़ो. कह रहा है जाया इन्वेस्ट 4500 इन अ सेविंग्स अकाउंट. ठीक है, द अकाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 3.2% पर ईयर. कैलकुलेट द. बेटा ये तो पी तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो पी कैसे पूछेगा? सबसे पहला सवाल तो आपने खुद से ये पूछना चाहिए. ठीक है, फिर कहता है कि द अकाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 3.2% पर ईयर.
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 5 years। बेटा इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्ली हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट के सवाल एग्जामिनर यूजुअली मोस्ट कॉमनली आपको दो तरीकों से पूछता है, या तो वो आपको बोलेगा कि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं या फिर आपने बैंक में रखे हुए, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब कि आपने बैंक में पैसे रखे 4500 और अब बैंक आपको उसका इंटरेस्ट देता जा रहा है। सो अब ये टोटल अमाउंट क्या हो गया एट द एंड अलोंग विद इंटरेस्ट? वुडंट दिस बी द टोटल अमाउंट? व्हाट डू यू थिंक? क्या टोटल अमाउंट नहीं बनेगा? डज दैट मेक सेंस? यस, इज दिस पार्ट क्लियर? तो वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, कि उस वैल्यू की अब क्या वर्थ होगी आफ्टर वॉट एवर द नंबर ऑफ ईयर्स वी हैव। सो बेटा सबसे पहले ये समझिए कि कंडीशन कौन सी थी, सिंपल इंटरेस्ट वाली। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, दैट इज आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, ठीक है। सो बेटा पी क्या था, पी वाज 4500 इनटू आर विच वाज व्हाट 3.2 इनटू टी विच वाज व्हाट 5 ओवर 100, ठीक है। सो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर इसका, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? 720। So is this going to be my answer? क्या ये मेरा आंसर होगा? No, ये this is not। 4500 के अंदर ऐड करेंगे। क्या कह रहे हो अब्दुल अहद? सॉरी, ये जो है 720 ये 4500 के अंदर ऐड करेंगे। ये ऐड करेंगे क्यों? बिकॉज दिस इज द इंटरेस्ट अमाउंट। बेटा ये इंटरेस्ट अमाउंट है, हमने क्या चाहिए था, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमने सीखा था, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी पी प्लस आई। सो आपने क्या करना है, 4500 में ऐड करना है एंड दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी 5, क्या बताया, 5220। चलो गुड जॉब, ठीक है। अब अगला सवाल पढ़ो और पूछो, मुझे बताओ एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे। व्हाट इज द एग्जामिनर डिमांडिंग? पढ़ो जरा, मुझे बताओ। एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है इनकी वेटिंग्स में। सो ख्याल से पढ़ना है, उसको फटाफट अटेम्प्ट नहीं करके आना, गलती करके आओगे, ठीक है। इंटरेस्ट अमाउंट मांग रहे हैं। इंटरेस्ट पूछ रहा है। देखो एग्जामिनर ने कहा कि टोटल अमाउंट, फिर एग्जामिनर मनूस ने लिख दिया ऑफ इंटरेस्ट। मतलब टोटल अमाउंट नहीं पूछ रहा आपसे, इंटरेस्ट पूछ रहा है। इंटरेस्ट बता दो क्या है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट बता दो। द इंटरेस्ट इज गिवन, वेयर इज इंटरेस्ट? ईशा बताओ कौन सी अमाउंट इंटरेस्ट की जो गिवन है? Next year, I meant the interest given by the bank. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो गुड जॉब। सो अब हमने पढ़ा है द फॉर्मूला इज व्हाट, A is equals to P bracket 1 plus R over 100 power T। गाइस अगर मैं लैग कर रहा हूं तो मुझे एक मिनट दो, फिर जरा इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। आई विल बी बैक इन अ सेकंड इफ आई एम लैग। लेट मी सी, जस्ट 1 सेकंड। अच्छा चलो, सो आई थिंक आई हैव द आंसर ऑलरेडी। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, ठीक है। लेट मी चेक इफ दैट्स द आंसर। दैट इज करेक्ट, दैट इज द आंसर, यस, ठीक है। आपका आई थिंक आपने जो है ना उसको रीसेट करें कैलकुलेटर को, शायद कोई और मोड दबाया होगा राउंड ऑफ करने वाला। कैलकुलेटर को रीसेट कर लो अब्दुल अहद। सो आई थिंक यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो हमें क्या कहता है, हमें जो है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। दैट मींस यू आर सपोज टू फाइंड आई, बट बेटा हमने डिस्कस किया कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जो है अमाउंट फाइंड कर पा रहे होते हैं बिकॉज द फॉर्मूला इज गिवन अस इन दैट वे। तो हम क्या करेंगे, इसको अमाउंट फाइंड करेंगे फर्स्ट, व्हिच इज गोइंग टू बी 2750 टाइम्स ऑफ व्हाट 1 प्लस 2.1 ओवर 100 पावर टी, और टी क्या था आपके पास 3। इससे आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा विच यू गाइस ऑलरेडी टोल्ड मी आई बिलीव। क्या बताया, कुछ बताया, 2926.91, ठीक है। सो यू गेट ए एज 2926.91। ये अमाउंट है बेटा। अगर आपको आई चाहिए तो क्या करोगे, आई इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला याद करो, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई है, बट अगर मुझे आई चाहिए तो क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, ठीक है। दैट हैज टू बी ए माइनस पी। आपको ए गिवन है, इसमें से पी माइनस कर लो व्हिच इज 2750 एंड यू विल गेट द इंटरेस्ट व्हिच इज व्हाट यू ऑलरेडी टोल्ड मी, दैट इज 176.9, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। वी हैव डन दिस probability, let's try probability. What does probability say? बेटा probability कहता है a bag contains 9 red counters and 3 green counters, ठीक है। 9 red है, 3 green है। कहता है Lee takes 2 counters from the bag at random without replacement। so without replacement का मतलब है अगर आपने एक चीज कंज्यूम कर ली you cannot use it again, वो शायद अब काउंट में से कम होगी, ठीक है। now you may have a reduced value। तो बेटा सबसे पहले अगर ये 9/12 है, can I find this value instantly? easily निकाल सकता हूँ without thinking? what do you think? कर सकते हैं? Yes. The total is always going to be 1, that means 12/12। so beta अगर ये 9 है so this has to be
3/12, ठीक है, गुड जॉब। सो बेटा अगर ये 8/11 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका नीचे टोटल क्या होना चाहिए, 11, ठीक है, क्योंकि टोटल तो सेम रहेगा, यहाँ पे भी टोटल आपके पास सेम रहेगा, यहाँ पे भी टोटल सेम रहेगा, सो यहाँ का रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी, 3/11, गुड जॉब। जरा इसके बारे में थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, ठीक है, अब थोड़ी सी शायद एफर्ट करनी पड़ेगी। मुझे बताओ अगर पहला ग्रीन था, विल दैट मेक अ डिफरेंस ऑन रेड ऑप्शंस? 9/11, चलो भाई 9/11 लिख लो, इट्स 9/11, ठीक है। सो अगर ये 9/11 है, दूसरा क्या होगा, 2/11, गुड जॉब। चलो अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ काउंटर्स आर रेड। दोनों रेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जल्दी से बताओ, वेयर इज बोथ रेड, लेट्स मेक इट इजी फॉर अस। आर आर, आर जी, जी आर अगर आप अपने पास लिख लेंगे तो आसानी होगी। सो बेटा कौन सा वाला ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन है, डबल आर वाला, सो वी बिलीव इट्स दिस केस, ठीक है, डबल आर, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, 9/12। आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में वी लर्न दैट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन यू आर ऑलवेज गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड इस डायरेक्शन में यू आर गोइंग टू ऐड, ठीक है। सो क्या होगा, यप कैंसिलेशन हो जाती है अभी। सो इट वुड हैव बीन 9/12 into 8/12, ठीक है। सो 9/12 into 8/11, so what's the answer guys, the answer is 6/11। चलो 6/11, चलो hang on, let me check this, 6/11 और इक्विवेलेंट, ठीक है, करेक्ट है। आगे देखो 15, लेट्स ट्राई 15। स्टूडेंट्स में इसको कंफ्यूजन होती है कुछ स्टूडेंट्स को, अच्छा मैंने ये पार्ट ऑलरेडी किया हुआ जरा, बट लेट मी रेज दिस। क्या कहते हैं, पढ़ो जरा, व्हाट डज इट से, इट सेज दीज आर द फर्स्ट 4 पैटर्न्स इन अ सीक्वेंस मेड फ्रॉम अ ब्लैक बीड्स एंड फ्रॉम व्हाइट बीड्स, ठीक है। ब्लैक बीड्स और व्हाइट बीड्स में से फॉर्म हो रहे हैं। मुझे जरा बताओ कि हमारे पास, हमें अगर ये टेबल को कंप्लीट करना है, सो व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस डू वी हैव इनिशियली ऑफ व्हाइट बीड्स, व्हाइट बीड्स की कैसी सीक्वेंस है, अगर हम देखें लीनियर सीक्वेंस है जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट द अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। सो अगर हम देखें कॉन्स्टेंटली +2 एंड +2 हो रहा है, तो बेटा अब क्या होगा, दोबारा से +2 होगा, +2 होने के बाद दिस विल बी 13, ठीक है। तो नीचे की देखो, नीचे वाली कैसी सीक्वेंस है बेटा, 6 and 10 दैट हैज टू बी 4, 10 and 15 दैट हैज टू बी 5, 15 and 21 दैट हैज टू बी 6। तो बेटा एक कैसी सीक्वेंस है, डिफरेंस तो सेम नहीं है, हम क्या चेक करेंगे, सेकंड डिफरेंस चेक करेंगे, इज द सेकंड डिफरेंस सेम, यस द सेकंड डिफरेंस इज सेम, हेंस इट्स क्वाड्रेटिक। तो अगर पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 6, सो द थर्ड डिफरेंस इज गोइंग टू बी 7, सो 21 + 7 इज गोइंग टू गिव अस 28, ठीक है। कहता है द नंबर ऑफ व्हाइट बीड्स इन पैटर्न एंड, बच्चे पैटर्न एन के व्हाइट बीड्स बता दो कैसे होंगे, एक्सप्रेशन बताना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन, सॉरी वी आर सपोज्ड टू टेल द एक्सप्रेशन। तो बेटा एक्सप्रेशन अरिथमेटिक का कैसे निकालते थे, वी नो अ जनरल फॉर्मूला दैट इज व्हाट, Tn is equals to a plus bracket n minus 1 times of d। d पहले लिखो या एंड में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। so what is the value of a, what is the first value, that is, good job, that is 5, and then we have d as what, the d as 2, ठीक है। so difference 2 है, first value हमारे पास 5 है, so it's going to be 5 plus n minus 1 times of 2, so this is going to be 5 plus 2n minus 2। बेटा 2 और 5 सॉल्व होके क्या हो जाएगा, 2n plus 3 is going to be करेक्ट है, गुड जॉब। अब क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ बीड्स इन पैटर्न n, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बीड्स इन पैटर्न n, क्या बताना है, एक्सप्रेशन बताना है, टोटल नंबर ऑफ बीड्स। बेटा ये रहे नंबर ऑफ बीड्स, हमने अभी देखा दिस इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। अच्छा, सो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के लिए हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला सीखा था, बट इससे काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा अगर किसी को फॉर्मूला याद हो। सो वी लर्न फॉर द केस ऑफ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस द फॉर्मूला दैट वी विल डू इज गोइंग टू बी a plus n minus 1 times of d plus d1 basically plus d2 over 2 and n square minus 3n plus 2, यही था ना सिंप्लीफाइड फॉर्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जल्दी से कंफर्म कर दो, इसका बैक फॉर्म क्या था, n minus 1 and n minus 2, so this is going to be n square minus 3n plus 2, ठीक है, n square minus 3n plus 2, ठीक है। चलो अब क्या होगा, मुझे बताओ व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस क्या है, क्या है फर्स्ट वैल्यू, 6, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस, that is 4। what is the second difference of the sequence, that is 1, good job, ठीक है। so ये आपके पास तीनों वैल्यूज हैं, परफेक्ट। so बेटा अब इसको प्लग इन कर लो, कैसे करोगे, देखो a की वैल्यू 6 बताइए आपने, प्लस n minus 1 टाइम्स ऑफ d,
नहीं बेटा, ये जो है ना डिराइव्ड फॉर्मूला है, ये टीचर्स ने, मैथमेटिशियंस ने, सब ने खुद से निकाला है, तो ये आपको एग्जामिनर नहीं देता, ठीक है। कुछ टीचर्स इसको जो है दूसरे ट्रायंगुलर मेथड से पढ़ाते हैं, बट आई फॉर सम रीजन लाइक दिस, पता नहीं, बट इट्स वेरी इजी। व्हाई बेटा, अगर आपको ये याद है ना, तो उसके बाद बहुत आसान है। देखो, अगर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, यही आगे बढ़ जाएगी कैसे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस दोबारा से, बेसिकली ये समझो, ठीक है। हमारे पास ये फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक है, आपने क्या करना है, दोबारा से d2 लगाना है अपॉन 2 एंड ब्रैकेट में n माइनस वन, वही चीज आपने ऐड की, बट अलॉन्ग विथ वन मोर डिफरेंस बिकॉज इट्स क्वाड्रेटिक। सो जस्ट मेमोराइज इट इन दिस वे, n माइनस टू, सॉरी, नॉट d माइनस टू, इट्स n माइनस टू। सो आई डोंट थिंक इट्स मच डिफिकल्ट। फर्स्ट पार्ट तो आपके पास एग्जैक्टली सेम है अरिथमेटिक का, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में आप ऐड कर लेते हो थोड़ी सी चीजें, ठीक है, बट दिस मेक्स योर लाइफ रियली इजी। आई नो वर्किंग कम है, बट एटलीस्ट यू सिक्योर सम मार्क्स, ठीक है। सो जरा देखो कैसे होगा, n माइनस वन इंटू डी वन, वॉट वॉज डी वन बेटा, फर्स्ट डिफरेंस आपने बताया 4, ठीक है, प्लस d2 ओवर 2, व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस हमारे पास था 1, चलो ख्वारी करवा रहे एग्जामिनर, सेकंड डिफरेंस वाज 1 ओवर 2 n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, ठीक है। कैसे होगा जरा देखो, 6 प्लस 4n माइनस 4, ठीक है, प्लस अब इस पूरे के ऊपर हाफ आ जाएगा, दैट मींस n स्क्वायर माइनस ऑफ 3n, n स्क्वायर माइनस ऑफ 3n प्लस ऑफ 2, एवरीथिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। So this is going to be what, 6 minus 4 is going to be 2 plus 4n, अब individually कर लो, so plus n square over 2 minus 3n over 2, and 2 over 2 क्या हो जाएगा, that would be 1। simplify कर लो मजीद बेटा, n square over 2 is individual, so n square over 2 अकेला आ जाएगा। फिर n की वैल्यूज कर लो कैलकुलेटर में, 4n minus 3n over 2, कैलकुलेटर अलाउड है, कर लो, कोई ख्वारी करने की जरूरत नहीं है। so 4 minus 1.5 होगा 2.5, that means plus 5 over 2 n के साथ, ठीक। और लास्ट टाइम क्या हो जाएगा, 2 plus 1, that gives us plus of 3। कैन यू डू दिस, yes or no, जल्दी से देखो, आई विल वेरीफाई दिस इन द मीन टाइम। करेक्ट। कौन सी वर्कशॉप बेटा, क्या वर्कशॉप चाह रहे हो, 8-8 घंटे की क्लास है जिसमें कुछ समझ नहीं आता है, 8 आवर क्लास। आई एम पर्सनली नॉट अ बिग फैन ऑफ वर्कशॉप्स, बट वी विल सी व्हाट वी कैन डू। मतलब इट्स अ गुड ऑप्शन टू मेक स्टूडेंट्स थोड़ा सा बेवकूफ बनाना। आई मीन अगर दिल करेगा तो कर लेंगे, बट सो फार आई एम नॉट प्लानिंग इट, वील सी। जिसने पूरा साल नहीं पढ़ा वो 8 घंटे में क्या पढ़ेगा बताओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक दो ट्रांसफॉर्मेशन के वो करा के क्लास खत्म, राइट। समझ आ जाएगा 8 घंटे में पूरा सिलेबस। एनीवेज देखो क्या कहता है, मैं भी जनरली कह रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, आई एम जस्ट जनरली स्पीकिंग ऑन द टॉपिक। ना अगर टॉपिक खुल ही गया गाइज, नेवर फॉल फॉर अ स्कैम दैट इज गेस्ट पेपर्स, ठीक है, गेस्ट पेपर्स पे कभी नहीं जाना। हाँ, ये वो स्टूडेंट जा सकते हैं जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, नेवर गो फॉर क्रैश कोर्सेज इन एवरीथिंग। सर इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसके अंदर तो थोड़ा करते हैं। उसमें वर्कशॉप करना चाह रहे हो तो चलो बात समझ आती है, फॉर्मेट वगैरह समझ लिया, ठीक है। मुझे बताओ मैथ फिजिक्स में आई वोंट से एनीथिंग, अब मे बी डिबेटेबल है, चलो अप टू यू, आई वोंट से एनीथिंग। मुझे देखकर बताओ, जी देख लो जैनब। बट आई पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वर्कशॉप्स। उन स्टूडेंट्स के लिए फायदा है जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, जिनको कुछ नहीं पता, थोड़ा बहुत सिलेबस का पता लग जाए। बट फॉर यू गाइज आई बिलीव पूरा साल अगर आपने पढ़ा है ना, यू गाइज who are attending classes since day one, I think you're going to waste your money for you guys। बट हाँ, पूरा साल अगर कोई फारिग बैठा हुआ था वो चलो ले ले तो समझ आता है, बट फॉर यू गाइज इट्स नॉट वर्थ इट। क्या सर कहता है अहमद अगला कर रहे पार्ट। हैं, हाँ सॉरी, सर अहमद कर रहे हैं। सर अहमद कर रहे हैं, कर लो, आई डोंट माइंड। इसीलिए मैंने कहा कि आई वोंट से एनीथिंग, इट्स डिबेटेबल। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है ना। आई थिंक ही वुड बी हैविंग हिज ओन लॉजिक्स, इट्स फाइन। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है कुछ, ही इज करेक्ट। प्लीज नेवर टेक इंग्लिश वर्कशॉप, इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। डोंट मिस द क्लास गाइस, मेरे ऊपर आ जाएंगे सर अहमद, ये क्या बोल दिया। आई डोंट मीन दैट। अच्छा एनीवेज देखो जरा क्या होता है, कहता है बिल हैज ओनली 88 वाइट बीड्स बट लॉट्स ऑफ ब्लैक बीड्स, ठीक है, वाइट बीड्स हैं और कुछ, मतलब क्या क्या। अच्छा इस सवाल को समझो, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इट सेज बिल हैज ओनली 88 बीड्स, 88 वाइट बीड्स, मतलब वाइट बीड्स जो है ना रिस्ट्रिक्टेड है, कोई सर्टेन लिमिटेड ऑप्शन है वाइट बीड्स का, बट ब्लैक बीड्स अनलिमिटेड है, वो जितने चाहे यूज कर सकता है। कहता है पैटर्न पी इज द लार्जेस्ट
possible pattern. Pattern P क्या है guys? Pattern P is formed which is a largest possible pattern he can make using these beats. तो मुझे बताओ, क्योंकि ये unlimited है, so should I consider this to be feasible or this to be feasible? मतलब मैं pattern P किसको देखकर बनाऊंगा? white को देखकर बनाऊंगा या black को देखकर बनाऊंगा? सबसे पहले ये बताओ. From 88 beats white, because वो limited व्हाइट से बनाऊंगी, क्योंकि ब्लैक तो अनलिमिटेड है, उससे तो मैं बनाता जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे पास व्हाइट ही नहीं बचे तो मैं ब्लैक से पैटर्न कैसे कंप्लीट करूंगा? बात समझ आ रही? बिकॉज दिस वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ. ठीक है, अब कहते हैं 88 व्हाइट बीड्स अवेलेबल थे, टेल मी द पैटर्न पी. तो इसका मतलब क्या है? कैन आई से दिस इज अ सर्टेन वैल्यू 88 बीट्स, जो कि शायद इस ग्राफ पर, इस टेबल पे मैं बनाना चाहूंगा, तो शायद दैट वुड कम समवेयर ओवर हियर. डू यू गेट दैट पार्ट? यस और नो? डज दैट मेक सेंस? Yes, so can I find the relevant pattern number? That means the value of n. बेटा ये हमारे पास वैल्यू थी t of white की, ठीक है, t of n बेसिकली या white colors के जो आपके पास बीड्स बन रहे थे, और इसका एक्सप्रेशन आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 2n plus 3. So what I'm going to say that white beats का फॉर्मूला था t of n is equals to 2n plus 3, जहां पे this is going to be 88 is equals to 2n plus 3, और बेटा अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा this is going to be 2n is equals to 88 minus 3, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 88 minus 3 अपॉन वो कर लो, क्या वैल्यू आ रही है? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? नहीं 88 नहीं था, 2, हाँ सही है ना, बल्कि जल्दी से बताओ व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? n की वैल्यू क्या आ रही है? व्हाट आर वी गेटिंग? 42.5. ठीक है, सो 42.5 से मुझे बताओ कि if 42.5 I'm getting as the pattern number, so what is the largest possible pattern that I can form from this? जल्दी से बताओ क्या होगा largest possible pattern? 41. Are you sure? बेटा पैटर्न नंबर है. यस यस यस, करेक्ट. तो बेटा इस बात को समझो, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 42.5 का मतलब क्या है? अगर मेरे पास n 42.5 आए, इसका मतलब ये है कि 42 कंप्लीट पैटर्न्स एंड हाफ पैटर्न. तो बेटा हाफ पैटर्न तो हम काउंट नहीं करेंगे, सो वी आर गोइंग टू हैव 42 एज द वैल्यू फॉर p. इज दिस पार्ट क्लियर? डज दिस मेक सेंस? यस और नो? आगे बढ़े, चलो. इसको पढ़ो जरा, कैलकुलेटर से करना है, पेपर 2 है, कोई ख्वारी की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन 16, द पॉपुलेशन ऑफ कीनिया इज 5.71 एक्सपोनेंट 7, द एरिया ऑफ कीनिया इज 6 एक्सपोनेंट 5, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर. बता दिया पीपल डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, यूनिट बता दिया, इसका मतलब आपको एक तरीके से आंसर बता दें. कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी, बेटा इसको कैलकुलेटर में डालना है, इसको कैलकुलेटर में डालना है, दोनों को डिवाइड करना है. सिंपल आंसर बता दो बगैर टाइम वेस्ट किया. अच्छा, एग्जामिनर ने आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आंसर नहीं मांगा. दैट इज द फनीस्ट पार्ट, कि आपको एग्जामिनर ने ये तक नहीं कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. सो बेटा आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जामिनर इज थिंकिंग व्हाइल मेकिंग दिस पेपर. ही इज प्रोबब्ली स्मोकिंग. बेटा आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी सच अ ह्यूज वैल्यू. ईशा, आर यू श्योर? चेक इट प्लीज. इतनी ह्यूज वैल्यू नहीं आएगी बिकॉज द डिफरेंस इज ऑफ पावर 2, सो 2-3 डेसिमल से ज्यादा नहीं आएगी. Significant figures. Yes, 95.16 kind of makes sense. Check कर लो ईशा. Are you able to get a correct answer for this? 95.16. ईशा, is this clear? Yes, चलो ठीक है, आगे बढ़ो. Let's try this. This is a nice question. ठीक है, although this is very easy, but students make blunders while doing this. ठीक है, क्या कहता है? 300 students take part in a competition. The table shows information about their scores. We have certain scores and certain frequencies. Now tell me what type of data is this? सबसे पहले आपको डेटा को कैटेगराइज करना आना चाहिए. कैसा डेटा है ये? This is जी मोहम्मद साद, आज माइक खोल ही दो, बता दो, आज अपनी आवाज सुना दो, जल्दी से बताओ. गलती हो ही गई है तो बता दो. अब बताओ मोहम्मद साद, कैसा डेटा है ये? मिस क्लिक माइक भी गलती से खोल लो जल्दी से. इट्स कंटिन्यूअस सर. कंटिन्यूस, गुड जॉब. ठीक है, सो इट्स कंटिन्यूस. बेटा सबसे पहले तो एक ग्रुप डेटा है, और ग्रुप की भी फर्दर कैटेगराइज करोगे तो ग्रुप के अंदर दिस इज कंटिन्यूस. शाबाश. ठीक है, सो क्या सीखा हमने कंटिन्यूस के बारे में? मीन कैसे निकलता है? हाउ डू वी कैलकुलेट मीन? डू यू रिमेंबर द जनरल फॉर्मूला? मीन इज कैलकुलेटेड हाउ? मीन इज इक्वल over sigma f. शाबाश, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ. बिल्कुल ठीक. सो बेटा यहाँ पे एफ की वैल्यू तो गिवन है. कैन आई से दिस इज माय एक्स और नो?
क्या हम इसको x कंसिडर कर सकते हैं? नो, अगर ये x नहीं है तो बेटा x क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? व्हाट इज x देन? इफ दिस इजंट माय x, व्हाट इज गोइंग टू बी x? Add both over 2. Good job. X is going to be the midpoints. Guys, for continuous data, we have discussed x is always going to be the midpoint. इसका मतलब क्या है? जल्दी से हम x की वैल्यूज लिखेंगे. So x is going to be 0 plus 30. That is 30 upon 2, 15. 30 plus 70, 70. 70 over 2, 35. ठीक है. फिर कहता है 40 plus 60, 100 over 2, 50. 60 plus 70, that is 65. चलो. फिर कहता है 70 and 100, that is going to be 85. ये mid values आ गई. ठीक है. अब आपने क्या करना है? एफ ऑफ एक्स की एक टेबल बनानी है. तो बेटा अब आपने एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज बतानी. जल्दी से इनके आंसर्स बताओ क्या आ रहे हैं मल्टीप्लाई के बाद. व्हाट आर द आंसर्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन? सबके आंसर्स बता दो. कैलकुलेटर यूज करो फटाफट. व्हाट आर द आंसर्स दैट इज गोइंग टू बी? इंडिविजुअली सबके आंसर्स बताओ. यूज करो कैलकुलेटर. 24 टाइम्स 15 इज व्हाट? 214. वो 360. करेक्ट, 360. एंड वी हैव 2450. ठीक है, 2450. we have 44 something, 4400 I believe, or something like that. Yes, 4400. फिर 4940, 4940, 4940. And we have what? We have 3570. ठीक है. जब ये हो गया, एक बार और कर लो, इन सब का सम फाइंड कर लो. ठीक है. व्हाट इज सम ऑफ एफ एक्स? सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. सम बता दो क्या आ रहा है. व्हाट्स द सम? थोड़ी सी देखो कैलकुलेशन में ख्वारी है, आई गेट इट, बट इट्स रियली इजी फॉर 4 मार्क्स. 15720. शाबाश. 15720. बेटा सम ऑफ एफ क्या है? काउंट कर लो इसको या नहीं करना चाहिए काउंट? व्हाट इज सम ऑफ एफ? शुड आई काउंट इट? हाउ डू वी नो? सर वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है. गुड जॉब बेटा. क्वेश्चन में लिखा होता है. स्टैटिस्टिक्स में मोस्टली 90% ऑफ द टाइम सम इज ऑलवेज गिवन. गिवन है तो गुड, नहीं गिवन तो इसका काउंट निकाल लेना. ठीक है. सो दिस इज व्हाट 300. कर लो और आंसर बता दो. व्हाट इज द आंसर? डिवाइड बाय 52.4. चलो 52.4 एंड दैट इज गोइंग टू बी इट. ठीक है. चलो अच्छा. नाउ if you want to make sure whether this is correct or no, while this is just a rough guess. ठीक है. इससे accurately पता तो नहीं चलेगा, but just a rough guess. guys, सबसे ज्यादा frequency कहाँ पे आ रही है मेरे पास? Where is the most frequency? What do you think? It's somewhere over here, right? 88. So बेटा मेरा मीन भी जो है ना शायद इसी के कहीं आसपास लाया कर रहा होगा. ठीक है. So that's kind of an approximation, but this isn't like a very accurate answer. अगर आपका आंसर बहुत ही कोई ऑफ आ रहा है, let's suppose 112 जो इससे बाहर है, इससे बाहर है, at least that would tell you कि you're doing it incorrectly. ठीक है. So next part देखो. कहते हैं on the grid complete the histogram to represent the data in the table. बेटा histogram बनाना है. कैसा डेटा गिवन है? दो चीजें देखनी है. ठीक है. आपको सबसे पहले बता, इस डेटा का हिस्टोग्राम बनाना है. तो इस डेटा का हिस्टोग्राम कैसा बनेगा? वी डिस्कस 2 टाइप ऑफ हिस्टोग्राम्स. ये कौन सा वाला हिस्टोग्राम होगा? We have done 2 type of histograms, right? Frequency density वाला. क्यों frequency density वाला होगा? Why is this going to be a frequency density? Because The class interval is the same. गुड जॉब. द क्लास विड्थ इज डिफरेंट. ठीक है. क्लास विड्थ डिफरेंट है. ये 30 है मेरे पास, ये वाली 10 है मेरे पास, ये वाली 20 है, ये वाली 10 है, ये वाली 30. ऑल द क्लास विड्थ्स आर डिफरेंट, हेंस वी आर गोइंग टू यूज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. हाउ डू वी कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? बेटा शजीन आई थिंक ऑलरेडी आंसर्ड इट. इट्स गोइंग टू बी फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ. ठीक है. मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या है फॉर द फर्स्ट केस फॉर 0 of 30? बेटा दी अदर केसेस जरा ये वाली है. आप स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ खोलिएगा, इसके बाद यू विल गेट टू नो. आई विल शो इट टू यू रियल क्विक. ठीक है. कहाँ गया स्टैटिस्टिक्स? ये तो अभी सबसे आखिरी चैप्टर्स में से किया हमने वैसे. ये वाला पढ़ो जरा क्या कह रहा है. If the class width is same, plot frequency on the y-axis. If the class width is different, plot frequency density on the y-axis. ठीक है. So ये रहा. या तो frequency density के साथ होगा या frequency के साथ होगा, वो आपको पता चलेगा class width के ऊपर. ठीक है. I'm sure this part is clear. ठीक है. ये डिपेंड करता है आपकी क्लास विड्थ की. इफ यू स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट क्लास विड्थ इज, बेटा आपने इन सब के डिफरेंसेस फाइंड करने. अगर तो सारे बराबर आते ना तो मैं डेंसिटी ड्रॉ नहीं करता, मैं फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करता. ठीक है. चलो
अच्छा अब हमने ड्रॉ करना है बिटवीन 0 एंड 30. 0 एंड 30 की फ्रीक्वेंसी क्या थी? इट वाज 24. क्लास विड्थ क्या थी? 30. So what I'm going to do for 0 and 30, I'm going to write frequency density, and beta frequency density आएगी 24 upon its width. So what is the answer for this? 24 upon 30. What is the answer? That is 0.8. तो हम क्या करेंगे, 0.8 पर रेक्टेंगल बनाएंगे for 0 and 30. वो कुछ इस तरीके से बनेगा. For 0 up until 30 it's going to be 0.8. अच्छा चलो, एग्जामिनर ने यहाँ पे भी तंग किया हमें. बेटा अगर ये 1 है एग्जैक्टली यहाँ पे, हाउ डू वी नो व्हाट इज 0.8? कुछ याद है? इंटरवल काउंट कर लो, क्या है टोटल डिफरेंस ऑफ इंटरवल? दैट इज 1. नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लो 5. सो 1/5 दैट गिव्स यू ईच बॉक्स की वैल्यू 0.2. सो 0.8 इज गोइंग टू बी आफ्टर 4 बॉक्सेस, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ठीक है, फिर क्या कह रहा है? 40 का वाला बना के दे दिया एग्जामिनर ने. दैट मींस नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर 40 एंड 60. द फ्रीक्वेंसी वाज 88 over 20. गाइस व्हाट इज 88 over 20? नॉट 20, सॉरी. हाँ 20 है, सही कर रहे हैं हम. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी अपॉन द क्लास विड्थ? 88 over 20. 4.4 पे बना लेंगे. 4.4 फॉर 40 अप अंटिल 60. सो 40 से लेकर 60 तक 4.4. दैट मींस 4 के बाद 2 बॉक्सेस और ऊपर. सो समथिंग लाइक दिस. This and then 2 boxes ऊपर, something I believe like this. ठीक है, so 2 boxes ऊपर. अगला क्या करना है? अगला हमने करना है 60 to 70. so 76 over 10 that is 7.6. कितने यूनिट्स? 10 यूनिट्स. ठीक है, 7.6 10 यूनिट्स पे बनाओगे रेक्टेंगल. 7.6 10 यूनिट्स पे. so 7.6 is going to be 2 units नीचे, right? so it's going to be 2 units नीचे. कहाँ से था हमारे पास? 60 से 70, right? 60 से 70 2 units नीचे. it's going to be something like this for 60 70. At the center we'll have 70. ठीक है, so next part is what? 42 over 30. that is 70 से 100 तक 1.4. चलो 70 से 100 तक क्या करेंगे? 1.4 करेंगे. 70 से 100 तक 1.4. गाइस एक चीज का खास ख्याल रखना, क्या इसमें गैप बनना चाहिए? should we be having gaps between the bars? no. अगर गैप होंगे तो क्या बन जाएगा? that will be a, वो क्या बनेगा गैप्स के साथ? that is a बार चार्ट, बार ग्राफ. करेक्ट, गुड जॉब. ठीक है, हमने सही किया. 1.4 नहीं, आई थिंक मैंने ज्यादा ऊपर कर लिया. सो एक यूनिट और नीचे. 1 2 3 4 5 नहीं, बल्कि ठीक है चलो 7 यूनिट्स ऊपर. ग्राफ ऑफ फंक्शंस. आगे देखो क्या कहते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शंस. वैल्यूज बता दो. ये आई डोंट थिंक दिस नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन. वैल्यू बता दो क्या आ रही है एक नंबर के लिए. स्टूडेंट इसमें भी गलत करता है. इसका आंसर भी कैलकुलेटर में प्लग इन तक नहीं कर पाते. जल्दी से बताओ कैसे होगा ये. हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? What's the answer for this? जल्दी से बताओ. Yes, plug it in the calculator. That is -8. अब बताओ कैसे इसको प्लॉट करेंगे. There is a specific way by which we plot graphs. कैसे प्लॉट करेंगे? I think I've explained this quite a few number of times. You have to plot with crosses. So -3 and -8. बेटा -3 ये रहा, -8 कहीं आपके पास आएगा 2 यूनिट्स ऊपर. ठीक है, फिर आपके पास होगा -2 and 6. so -2 and 6 would be 6 यूनिट्स ऊपर. -2 and 6 somewhere here. फिर क्या कहते हैं? -1 and 8. so -1 and 8 is going to be somewhere here. What's the next one? That's 0 and 4. 0 and 4 is going to be at this place. Then we have 1 and 0, I believe, right? so 1 and 0 is going to be at this place. And then we have what? We have 2 and 2. 2 and 2 is going to be at this place. And then we have what? 3 and 16. so 3 and 16 has to be 15 and 16 at this place. ठीक है, अब क्या करना है? फ्री हैंड स्केच करना है. गाइस आई सी सो मेनी स्टूपिड स्टूडेंट्स जो कि क्या करते हैं, सीढ़ियां बना देते हैं. गाइस दिस इज नॉट द राइट वे. प्लीज डोंट डू दिस. इसको नहीं करना है. स्मूथ ग्राफ्स बनाने के आपको एग्जामिनर नंबर देता है प्रॉपर्ली स्केच करने के. ठीक है, नाउ आई मे नॉट बी एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. लेट्स सी. आई होप सो मैं बना लूं अच्छे से डिजिटली. प्रे फॉर मी गाइस प्लीज, वरना भी मजाक हो जाएगा यहाँ पे. चलो, सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. चलो ठीक है, समथिंग लाइक दिस.
चलो नॉट बैड। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब क्या कहता है, बाय ड्रॉइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ, इज दिस एंड इज दिस एग्जैक्टली सेम और आर दी स्लाइटली डिफरेंट? इज दिस, हाँ गुड जॉब, इज दिस सेम और इज दिस स्लाइटली डिफरेंट? स्लाइटली डिफरेंट के लिए क्या तरीका समझा था, कुछ याद है? दोनों को क्या कर लो, डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, टेक द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज y is equals to x cube minus 5x plus 4, y is equals to x cube, y is equals to x cube minus 5x plus 4. Take the second equation that you're supposed to draw, उसके नीचे लिखो x cube minus 5x minus 3 equals to 0 y के नीचे, subtract the two equations. बेटा y minus 0 is what? Y minus 0 gives you y. X cube minus x cube cancel. Minus 5x minus minus 5x. That means minus 5x plus 5x हो जाएगा. ठीक है, you're subtracting the two equations. So be cancelled. बेटा 4 minus minus 3. What will that be? जल्दी से बताओ. That has to be 4 minus minus 3. That has to be 7. Good job. So बेटा क्या equation draw करनी है हमने? We are supposed to draw an equation that is y is equals to 7. Y is equals to 7 कैसे draw होती है? A line at 7 कैसी बनेगी? Which is a linear line, horizontal या vertical? It's a horizontal line. ठीक है, so horizontal line at 7 आपने draw करनी है, straight line बनेगी। बहुत आसान सवाल था, इसमें आपको एग्जामिनर slanted line तक नहीं दी। ठीक है, आपको straight line draw करने को कही है, so it's a very easy part. ठीक है, so this is 10, 9, 8 and 7. Somewhere here we are going to draw. ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आपके पास solutions का क्या मतलब होता है? What does solutions mean? इसका क्या मतलब होता है? You're supposed to give us the values of x. बेटा x intercepts निकाल लो। I think this is very easy. Easiest graph of functions का question that you can get. May June 2025 वाले students were so damn lucky. ठीक है, although इनका न्यू पैटर्न था, पेपर से पहले तो इनकी हालत टाइट थी, बट पेपर के दौरान तो ये झूम उठे होंगे सारे। ठीक है, चलो, आई एम श्योर यू कैन टेल व्हाट दीज वैल्यूज आर, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। Oh, mashallah, good job. ठीक है, so what is the answer? The answer for this is going to be 2.5 minus 0.5, 0.5 थोड़ा सा आ गया। आई थिंक वो ग्राफ की वजह से आ रहा है आपका और मेरा स्लाइड डिफरेंस। ठीक है, हमारा थोड़ा सा आगे बनेगा ये राइट, बट दिस वुड स्टिल नॉट बी 0.7 एज पर माय ग्राफ। आपको एग्जामिनर इसमें रेंज देता है, दिस इज गोइंग टू बी समवेयर हियर। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको रेंज देता है, सो यू डोंट नीड टू वरी अगर आपका और आपके दोस्तों का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। दैट इज पॉसिबल, व्हाई? बिकॉज ग्राफ फंक्शन में स्केचेस आर स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, सो ये से इट्स 2.5, 2.5 हम लोगों का ऑलमोस्ट सेम है। देन वी से दिस इज माइनस 1 पॉइंट व्हाट 5 माइनस 1.6 आ रहा है मेरा, आपका 1.8 है। ठीक है, माइनस 1.6 एज पर माई ग्राफ, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 0.65 या समथिंग लाइक दैट, 0.65 or you can say 0.6, somewhere around that. ठीक है, so 0.6 along with a negative sign. Keep in mind examiner जो है ना, इसमें आपको wide variety of range देता है। Let's see what we have over here. ठीक है, so हमारे पास this is what the examiner has to say. आपके पास माइनस 1.95 से माइनस 1.7। अच्छा, मेरे आंसर स्लाइटली डिफरेंट आ रहे हैं, राइट? ठीक है, प्रॉब्ली बिकॉज आई एम नॉट ड्रॉन अ वेरी एक्यूरेट आंसर, बट इट हैज टू बी समवेयर बिटवीन द रेंज। हमारे पास एक आंसर एक्यूरेट आया है and the other two has to be between minus 0.5 and 0.8. It depends on how smooth your graph is. ठीक है, so अपना graph properly draw करेंगे। I think we've made a slight error at this point. थोड़ा सा और graph ऊपर जाना चाहिए था, and this would have been more smooth like this. You would have gotten a better answer. Is this clear, guys? Should I draw it again or is this fine? जल्दी से बताओ, should I draw it again or is this fine? Got it? चलो ठीक है, so the smoother your graph is, the better it would be. चलो आगे बढ़ो। दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी नाइस। जरा इसको देखो क्या कहता है। माइनस 1.8, हाँ, एनीथिंग बिटवीन दिस और दिस इज फाइन। एनीथिंग बिटवीन दिस और दिस वुड बी फाइन। एग्जामिनर विल बी गिविंग यू अ सर्टेन रेंज। ग्राफ फंक्शन में रेंज होती है, छोटी सी डेविएशन आपके पास अलाउड होती है। ठीक है, चलो लेट्स डू इट। अच्छा, अगला पार्ट देखो क्या कह रहा है। अगला पार्ट कहता है शो दैट सी डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। क्या करना है? शो सी डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। बेटा सी डी है क्या हमारे पास? दिस पार्ट इज सी डी। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद द पेपर, यस और नो? रहता है, चलो अभी चाहिए, टाइम चाहिए थोड़ा सा, 15-20 मिनट लगेंगे। सी डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। व्हाट इज सी डी? बेटा दिस इज सी डी। हाउ आर वी गोइंग टू प्रूव दिस? कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, 2x minus
3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे x माइनस 2 से। गुड जॉब, 2x माइनस 3, इज दिस करेक्ट? ब्रैकेट डालेंगे। गुड जॉब, ब्रैकेट डालेंगे गाइस। अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे ना, बिकॉज दिस होल लेंथ इज सपोज टू बी सब्ट्रैक्टेड विद दिस होल लेंथ, अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे ये I think x minus 5 आ रहा होगा, which is incorrect, right? So this really shows us the importance of brackets. ठीक है, so क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे and this is going to be 2x minus x, that is going to give us what? That is going to give us x, and minus 3 plus 2, that is going to give us what? Minus 1. आपके पास prove हो गया 1 out of 1 for this. ठीक है, अगला कहता है the area of rectangle ABCD is 1/5 of the rectangle EFGD. ठीक है, so EFGD का 1/5 है. So बेटा EFGD का 1/5 है, तो क्या करेंगे, can we form टू टाइप ऑफ इक्वेशंस? कैसे? स्मॉल रेक्टेंगल भी बनाकर देखते हैं, बिग रेक्टेंगल भी बनाकर देखते हैं। मुझे बताओ, इसको हमने अभी प्रूव किया, दिस इज x माइनस 1, ठीक है, ये x माइनस 1 है। मेरे पास ये लेंथ क्या आएगी? 3। हाउ डू वी नो? वी नो बेटा, अगर दिस इज x एंड दिस इज x प्लस 3, तो बेटा यहाँ तक तो x है, मजीद क्या है, दैट इज 3 व्हिच इज गोइंग टू बी हियर। ठीक है, सो आपके पास एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स x प्लस 3 व्हिच इज गोइंग टू बी व्हाट, 3x प्लस 9। ठीक है, 3x प्लस 9, यही करने, x प्लस 3 नहीं था, वेट, इट इज x माइनस 1, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, so it is what, 3x माइनस 3। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। अब अगला पार्ट देखो क्या कहता है, ये स्मॉल रेक्टेंगल है, लार्ज रेक्टेंगल करके देखते हैं। दिस इज स्मॉल, लेट्स डू द लार्जर वन। लार्जर वन का एरिया कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे लार्जर का एरिया? 2x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 से। ठीक है, 2x माइनस 3 एंड x प्लस 3। ठीक है, सो इसकी कैसे कैलकुलेशन होगी, 2x स्क्वायर एंड प्लस 6x, ठीक है, माइनस 3x एंड माइनस ऑफ 9। ठीक है, सो अब मुझे बताओ कि इसको मजीद अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, दिस वुड बी 2x स्क्वायर एंड क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि अब हम क्या करेंगे, देयर इज अ वे दैट वी लर्नड व्हेन वी आर डूइंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ अलजेब्रा। कुछ याद है क्या करेंगे? अब स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रही है ये वाली, डू दिस एंड लेट मी नो, जल्दी से बताओ, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? What are we going to do for this part? फटाफट से बताओ गाइस, क्या करेंगे आप? Subtracting और adding? No बेटा, क्या वो कह रहा था डिफरेंस इसका क्या है? दैट इज नॉट व्हाट द एग्जामिनर सेड। क्या कहा था एग्जामिनर ने, जल्दी देखकर बताओ। मोहित, वुड यू वांट टू आंसर? मल्टीप्लाई डिवाइड, किससे किसको मल्टीप्लाई करोगे? स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बट वी नीड टू थिंक अबाउट दिस स्मार्टली। किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? जल्दी से, आई गिव यू। divide 1 by 5 with 2x square plus 3x minus 9 or multiply with the another one, the small one. So this is what you're saying, right? 1.5 times of this. This is what he said, correct? No sir, divide it with this one. Divided with this one. और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x minus 3 से। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट सीम्स टू मेक सेंस। ठीक है, डिवाइड करना है उसको, नहीं सर, वाई नहीं सर? अच्छा देखो जरा ये बात को समझो, यू सेड द ऑपोजिट। अच्छा चलो ये बात को देखो, ये बात को देखो, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये स्मॉल रेक्टेंगल, ये लार्ज रेक्टेंगल है, मैंने इसलिए पहले से लिखा। सो बेटा ये वैल्यू ऑलरेडी कम है, यस और नो? Is this already smaller, lesser value, and lesser by how much? Lesser by 5 units, right? Divide हो रहा है basically. So this is less, this is a smaller value by 5, multiple of 5 से कम है। So मुझे बताओ, अगर मुझे इन दोनों को equate करना है, इन दोनों को बराबर करना है, so बेटा ये already कम है। अगर ये कम है और मुझे दोनों को बराबर करना है, तो मुझे यहाँ पे multiply by 5 करना चाहिए, divide by 5 करना चाहिए? What am I supposed to do? Think about this. मल्टीप्लाई ना, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी लेस। डज दैट मेक सेंस, यस और नो? जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ आती है?
बेटा अभी इक्वेशन नहीं बनी हुई, आपको सिर्फ ये पता है कि इसका एरिया स्मॉल है, इसका एरिया लार्ज है। अभी ये बराबर नहीं है, बट आपको इक्वेशन बनानी है। दैट मींस यू नीड टू इंट्रोड्यूस एन इक्वल्स का साइन। इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस एन इक्वल्स का साइन, so this value was already smaller, hence you're going to multiply it with 5, so this becomes large and it's equivalent to the other value. Does that make sense? Is this part clear? Yes or no? Did we not do this? We did this, right? अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5 टाइम्स 3x माइनस 3 क्या हो जाएगा 15x माइनस ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 9। एक जगह लेके जाओ, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड क्या हो जाएगा माइनस 15x, ठीक है, माइनस 15x माइनस 9 प्लस 15 is equals to 0. So beta this would be 2x square minus 12x and this would be what plus 6 is equals to 0. क्या equation बनी? अभी भी नहीं बनी, क्या issue है? Tell me what is the issue now? What are we supposed to do? Divide by 2. Divide by 2. बेटा तीनों में आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, hence it will be what x square minus 6x plus 3. क्या प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था? Did we prove it? ठीक है, चलो गुड जॉब, आगे बढ़ो। अब कहते हैं यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। करने की जरूरत है क्या गाइस? जल्दी से कैलकुलेटर से बता दो वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस? आई डोंट थिंक वी नीड टू सॉल्व दिस। करना है ये? किसी ने करना है? आंसर्स बता दो कैलकुलेटर से क्या आ रहा है। एनीवन यूज द कैलकुलेटर, फटाफट आंसर्स बता दो, ताकि हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में चाहिए होगा, या एक्चुअली मैं यहाँ से देख लेता हूँ जल्दी से। व्हाट क्वेश्चन इज दिस? दिस इज 20b। It's 712, nahi, 20b. It's 5.45 and 0.55. 5.45 and 0.55. कहता है कैलकुलेट द शेडेड एरिया। बेटा शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? शेडेड एरिया में हमने क्या प्लग इन करना होगा? जल्दी से बताओ क्या प्लग इन करना होगा? What are we supposed to plug in? What are we supposed to plug in for the case of shaded area? शेडेड एरिया निकलेगा कैसे, पहले मुझे ये बताओ। हाउ विल वी फाइंड शेडेड एरिया फॉर दिस केस? मोहिब समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे? यू बीन साइलेंट फॉर नाउ। कैसे निकलेगा शेडेड एरिया? एनीवन? बिग माइनस स्मॉल, ठीक है, 2 रेक्टेंगल्स माइनस कर दो दोनों का, ठीक है। बिग रेक्टेंगल कैसे निकलेगा? वी ऑलरेडी हैव एन इक्वेशन जो हम लिख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, ठीक है। तो वी हैव वन इक्वेशन दैट इज 2x स्क्वायर, और बिग रेक्टेंगल दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। बेटा what was the small rectangle? You will select this value now बगैर multiple of 5 के, because ये आपने equate करने के लिए ली थी, which is 3x minus 3 minus of 3x minus 3. Now tell me which value of x will you select? क्या दोनों use कर सकते हैं? Can we select both? Think about this. Can we select both values of x? Which one will we select and why? Which one seems to make sense? बेटा दोनों ही पॉजिटिव है। इन दिस केस बोथ वर पॉजिटिव। नेगेटिव होता तो हम रिजेक्ट कर लेते। व्हिच वन? व्हाई फर्स्ट वन? व्हाई? क्यों फर्स्ट वन? देयर इज अ लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड इट। व्हाई? बिकॉज़ We can subtract decimal value from 2. 0 पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0.55? नॉट गट फीलिंग, देयर इज मार खाओगे सारे। सोचो जरा इस बारे में। बेटा x की वैल्यू आपके पास क्या है जरा सोचो, 5.45 एंड 0.55, ठीक है। वर्किंग करोगे तो आपको तो आइडिया हो जाएगा, बट वर्किंग करने की जरूरत भी क्यों है? यू कांट सब्ट्रैक्ट डेसिमल फॉर सब्ट्रैक्टिंग विथ 2। लेट मी थिंक। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, शाबाश शाबाश, जीनियस हो, जीनियस हो। देखो बेटा मुझे बात बताओ, 0.55 अगर मैं यहाँ पे लूंगा, क्या ये लेंथ नेगेटिव हो सकती है? कैन दिस लेंथ बी नेगेटिव? Does that make sense? Yes or no? जब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, x को प्लग इन करूंगा, this will turn out to be negative, which doesn't seem to make sense, right? So x is such a value which is so small कि अगर आप यहाँ पे इसको subtract करके ये वाला find करोगे, it doesn't seem to make sense, which means this has to be the correct value, right? So आपने यहाँ पे सिर्फ x की values निकाल के subtract कर लेना है। कर लोगे इसको खुद से? Can you plug in these values now? ठीक है, तो उनकी distinction भी आती है फिर। 5.45
5.45. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू गोइंग टू डू. बेटा आप अगर ये दोनों प्लग इन करते ना तो भी आपके पास आंसर आ जाता, बिकॉज इसका एरिया आपके पास शायद नेगेटिव आ रहा होता. बट टेल मी, वुड इट बी वर्थ इट टू वेस्ट योर टाइम फॉर 2 मार्क्स? वर्थ इट होगा? नहीं होगा. सो यू नीड टू बी स्लाइटली स्मार्टर. बेटा उसमें से एक वैल्यू हमेशा रिजेक्ट हो रही होगी, दोनों आप अप्लाई नहीं कर सकते होते. सो आई एम श्योर यू कैन सॉल्व दिस. प्लग इन वैल्यू व्हाट 5.45 इन हियर एंड गिव अस द वैल्यू फॉर दिस. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. Mensuration, cone and a hemisphere, I believe. It says the diagram shows a solid formed by joining a cone to a hemisphere. The diameter of the cone is 14 centimeters and the diameter of the hemisphere is 14 the diameter of the hemisphere is 14 centimeters. ठीक है, and कहता है calculate the volume of the solid. Volume निकालना है इस पूरे solid का. So बेटा कौन कौन से shapes हैं? We have 2 shapes formed by joining a cone to a hemisphere. क्या करोगे, जरा सा आगे जाओगे पहले पेज पे. ठीक है, पहले पेज पे जाओगे, यहाँ पे आपके पास कहीं फॉर्मूलाज गिवन होंगे. सो आपने यहाँ से स्फीयर का उठाना है और वॉल्यूम का उसका निकालना है. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड अ कोन. बेटा कोन का ये रहा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड स्फीयर का ये रहा 4 पाई, नहीं सरफेस एरिया नॉट दिस. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी हैव इट हियर. ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, जल्दी से कर लो. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 pi r cube and volume of cone is what? 1/3 pi r square h. ठीक है, ये दो चीजें पता है हमें. अब मुझे बताओ कि आर वी गोइंग टू यूज एज इट इज? क्या हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज करेंगे? एज इट इज डिवाइड बाय बिकॉज़ दिस वाज अ हेमिस्फीयर. गुड जॉब, दिस वाज अ हेमिस्फीयर. आपको एग्जामिनर कभी भी हेमिस्फीयर का फॉर्मूला नहीं देगा. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वुड बी व्हाट? 4/6 pi r cube प्लस ऑफ कोन कर लोगे इसमें, प्लस कोन दैट इज गोइंग टू बी एज इट इज 1/3 pi r square h. नाउ द थिंग इज व्हाट वाज द रेडियस फॉर हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर का रेडियस क्या था? व्हाट वाज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर? दैट इज 7. गुड जॉब. सो यहाँ पे आपने रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या प्लग इन करना है? 7. मुझे बताओ रेडियस ऑफ कोन क्या था? रेडियस ऑफ कोन 7. बेटा अब मुझे बताओ क्या हाइट में मैं 24 ले सकता हूँ या नहीं? ले? नो, 27 तो 24 नहीं ले सकता. करेक्ट. इफ वी कांट टेक दिस बेटा, अब एक और मसला आ गया कि बेटा अगर ये मेरे पास 24 नहीं है बिकॉज कोन की हाइट तो ये वाली, सो हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड दिस? दिस इज अननोन एज वेल. यूज पाइथागोरस टू फाइंड स्लांट. मार खानी है अभी सबने. बेटा कैसे पाइथागोरस लगाओगे, जरा मुझे समझाओ. आज मुझे मैथ्स पढ़ा दो जरा. स्लोप निकालनी देन हाइट. सर एच इज परपेंडिकुलर, तो बेटा एच तो ये वाली ना, देखो बेटा दिस इज एच. हाउ कैन यू गाइस बी सो स्टूपिड? आसान पेपर, अभी A* लेने की बातें कर रहे थे, दिमाग किसी का नहीं चल रहा. बताओ, wasn't this the height, right? हमने पाया इसमें h प्लग इन करना है, l नहीं प्लग इन करना. दिस इज नोन एज l एंड दिस इज हाइट. आई नीड हाइट. गुड जॉब बेटा. सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगा लो अगर है तो, अगर अभी खप नहीं गया तो. जरा ये देखो बेटा, अगर ये 7 है, क्या ये हमने डिसाइड किया था 7 है? यस और नो? डिड वी डिसाइड दिस टू बी 7? तो बेटा क्या ये भी 7 नहीं होगा? यस और नो? Isn't this the radius as well? So what is going to be the height of cone? Good job. पीछे किसी एक स्टूडेंट ने आंसर किया था. What is going to be the height? Who was that? That is Mohammad Saad and Shazeen, I believe. Abdullah Nabi, all three of you. Good job. So this is going to be 24 minus 7, which is going to be what? That is going to be 17. ठीक है? Is this part clear? कर लोगे, वॉल्यूम निकाल लोगे? Can you find the volume of this now? हो जाएगा? Can you do it now? आगे बढ़े. चलो अगला पार्ट. लेट मी सी व्हाट द आंसर इज फॉर दिस. दिस इज 1590. ठीक है, इसका आंसर क्या है हमारे पास? इसका आंसर है 1590. प्लग इन कर लीजिएगा कैलकुलेटर में. अच्छा 21 ये हो गया. लेट्स मूव ऑन टू 21b. 21b क्या कहता है? कहता है शो दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 712 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर आपको एग्जामिनर ने बता दिया, मेहरबानी किया. मुझे बताओ कितनी सरफेसेस होंगी शेप के लिए? हाउ मेनी सरफेसेस आर वी गोइंग टू हैव फॉर दिस केस? 2 सरफेसेस, एक हेमिस्फीयर और एक कोन. ठीक है, सो हम क्या करेंगे? दोनों कर्व सरफेस हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट?
कोन, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकलता है? दैट इज 4 पाई r स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बेटा? दैट इज गोइंग टू बी पाई r l, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला शीट से उठाना है। चलो अब मुझे बताओ कि अगर ये है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है फॉर्मूला में? हमने फॉर्मूलास कौन से पिक किए हैं? वी पिक्ड अप द फॉर्मूला ऑफ स्फीयर एंड कोन। व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ? क्या करेंगे? क्या इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं? गुड जॉब। इसको हेमिस्फीयर के लिए दिस विल टर्न आउट टू बी 2 पाई r स्क्वायर, प्लस कोन करने के लिए इट्स गोइंग टू बी पाई r l। 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। हेमिस्फीयर का रेडियस तो सेम था 7, सो 2 पाई 7 स्क्वायर। बेटा हमारे पास यहाँ पे पाई r l में पाई भी सेम रहेगा, रेडियस भी सेम रहेगा कोन के लिए, ठीक है। इस बात को जरा समझिएगा। द रेडियस विल बी सेम एज वेल, दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, राइट, 7। सो ये भी सेम रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी पाई टाइम्स 7। अब l क्या होगा बेटा? अब l इज द स्लांट लेंथ। l अब मेरे पास ये है, अब l कैसे आएगा अब बता दो। चलो जल्दबाजी कर ली थी बहुत, पाइथागोरस पर जबरदस्ती हर बार लगाना है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 7, दिस इज 17 एंड वी कैन फाइंड आउट द पाइथागोरस थ्योरम से l व्हिच इज गोइंग टू बी रूट ऑफ, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी, अगर हम देखें l हमारे पास आएगा ट्रायंगल में 7 एंड 17 की मदद से। सो दिस इज गोइंग टू बी h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ h इज गोइंग टू बी व्हाट? दैट इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। सो इसके आंसर से आपने कर लेना 18.38। ये चीज क्या होगी आपके पास? दिस इज इक्वल टू 18.38। निकाल लोगे सरफेस एरिया, कर लोगे, अब हो जाएगा। आगे बढ़े, should we move on? ठीक है। so the answer is what? let me check the answer. the answer for this part turns out to be 21, क्या है? b है ना, 21b का आंसर is 712.3, ठीक है। so let's say this is 712, बल्कि प्रूव ही करना था ना, हमने आंसर तो गिवन था, we are so stupid. the answer is 712, हमने इंटीजर पे एग्जैक्ट प्रूफ करना था, so this is 712. अगला पार्ट देखो क्या कह रहा है। अगला पार्ट कह रहा है स्मॉलर सॉलिड इज मैथमेटिकली सिमिलर टू द सॉलिड, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर सॉलिड इज 242, calculate the total height of the smaller solid. क्या करेंगे? what are we supposed to do? what is the hint given? hint क्या given है? good job। कैसे पता? कैसे पता? there is a keyword used, keyword given है। क्या है keyword? mathematically similar, ठीक है। so mathematically similar में you're not supposed to use the concept of mensuration, ठीक है। similarity के concepts लगाने। so a1 over a2 is equals to l1 over l2 का square, ठीक है। so मेरे पास एक एरिया था 712 और एक एरिया गिवन है 242, ठीक है। सो अब 712 वाज द लार्जर साइड, मुझे हाइट ऑफ द स्मॉलर सॉलिड फाइंड, हाइट क्या फाइंड करनी है? हाइट ऑफ द स्मॉलर सॉलिड, दैट मींस द टोटल सॉलिड की हाइट। वो टोटल सॉलिड की हाइट क्या थी इस केस में? इट वाज 24। तो बेटा यहाँ पे मैंने हाइट क्या लेनी है? 24, और ये वाली वैल्यू अननोन, इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा पूरे सॉलिड की। सॉलिड क्या था? इट वाज अ कॉम्बिनेशन, अ मिक्सचर और अ कॉम्पोजिट ऑफ टू शेप्स, हेमिस्फीयर एंड अ कोन, राइट। सो कैन यू सॉल्व दिस नाउ? हो जाएगा, निकाल लोगे, कर लोगे इसको, ठीक है। सो 24 स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड यू शुड बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ x। आगे बढ़ने हम, ठीक है, इजाजत है। चलो जी, हाउ मेनी क्वेश्चंस? बस एक क्वेश्चन रह गया, अगला वाला इजी, एक क्वेश्चन रह गया सिर्फ। कहता है द डायग्राम शोज ट्रायंगुलर फील्ड एबीसी। बेटा एबीसी एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। फिर कहता है फेंसिंग इज नीडेड फॉर द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। क्या कहता है? इस पूरे पेरीमीटर, पेरीमीटर इज आउटर साइड, इस पूरे पेरीमीटर पे फेंस की जरूरत है। कहता है फेंसिंग इज सोल्ड इन रोल्स ऑफ 20 मीटर्स। 20 मीटर्स के उसमें रोल सेल होते हैं। बेसिकली वन रोल इज ऑफ 20 मीटर्स एंड वो इसके मल्टीपल में ही सेल होगा। आप जो है 21 पॉइंट लेट्स सपोज 2.5 रोल्स या इस तरीके से शायद नहीं खरीद सकते। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोल्स ऑफ फेंसिंग नीडेड। तो मुझे बताओ पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए? ये लेंथ गिवन है, ये लेंथ गिवन है, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड दिस लेंथ? कैसे फाइंड करेंगे? कोसाइन रूल, कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है, इजी है। सो क्या करोगे? ठीक है, पेयर बनेगा यहाँ पे, पेयर में आपके पास दिस इज द एंगल, दिस इज द अननोन लेंथ, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 150 स्क्वायर, फटाफट कैलकुलेटर यूज कर लो, प्लस 187 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स 150 टाइम्स ऑफ 187 टाइम्स ऑफ व्हाट? cos ऑफ 112। कीप इन माइंड योर कैलकुलेटर इज इन डिग्री मोड, ठीक है, डिग्री में होना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका? कैन यू डू अ स्क्वायर रूट ऑफ एवरीथिंग?
स्क्वायर रूट कर लो x की क्या वैल्यू आएगी व्हेन यू डू अ रूट ऑफ दिस होल थिंग, इस पूरी चीज पर रूट अप्लाई कर लो, व्हाट इज द आंसर 280। चलो x इज व्हाट, x टर्न्स आउट टू बी 280। बेटा अगर 280 है सो व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल पेरीमीटर, कैसे निकालोगे टोटल पेरीमीटर, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर 280 प्लस 150 प्लस 187, ठीक है। सो पेरीमीटर इज व्हाट, दैट इज 280 प्लस 150 प्लस 187, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, दिस इज 617, ठीक है 617। बेटा आपने क्या फाइंड करने थे, नंबर ऑफ रूल्स, नंबर ऑफ रूल्स निकालने के लिए क्या करोगे, ठीक है सीम्स टू बी करेक्ट, ठीक है डिवाइड बाय 20 एंड आंसर क्या है जल्दी से बताओ, अभी हम चेक कर लेते हैं आंसर क्या है 30.85, ठीक है। तो 30.85 में अब मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ रोल्स चाहिए होंगे कितने नंबर ऑफ रोल्स चाहिए होंगे, वील बी नीडिंग 31। सो बेटा अगर आपने इस केस में इफ यू राइट दिस एज द आंसर, आपने एग्जामिनर ने एक नंबर काट लेना है, ठीक है। अगर आपने ये लिखा तो एग्जामिनर एक नंबर काट लेगा एंड नाइदर इज द आंसर गोइंग टू बी 30। गाइस इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, अदरवाइज वील मूव ऑन। एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट, नो कंफ्यूजन, ऑल गुड, आगे बढ़े। अगला पार्ट क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए सी। बेटा बी से ए सी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या मतलब, व्हाट डज इट मीन, दिस इज व्हाट इट मींस, बी टू ए सी, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट 90। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ बी टू ए सी आपने परपेंडिकुलर बनाया, सो दिस इज द लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट यू सपोज्ड टू फाइंड। कैसे फाइंड करोगे, क्या करोगे फटाफट बताओ, कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, क्या करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे अप्लाई करोगे, चलो बताओ, ठीक है दैट सीम्स टू मेक सेंस, बट हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई, वी डू नॉट हैव इनफ वैल्यूज आई बिलीव, कैसे करोगे, Sir, first we'll find the angle BAC. गुड जॉब। पाइथागोरस कैसे लगाओगे गाइस, बताओ कौन सी वैल्यू नोन है हमारे पास, डू वी नो 2 लेंथ, क्या 2 लेंथ पता है क्या इस राइट एंगल ट्राइंगल की, इज इट नोन, इट्स नॉट नोन, राइट। सो इफ यू आर कंसीडरिंग, लेट्स जस्ट से अगर आप ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हो तो सिर्फ एक गिवन है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, सो यू कांट अप्लाई पाइथागोरस। इफ यू आर कंसीडरिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल, तो बेटा ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, यू स्टिल कांट अप्लाई। सो आपके पास सिर्फ एक चीज गिवन है, सो यू प्रोबेबली नीड वन एंगल और एनी ऑफ द लेंथ, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या चीज करोगे, व्हाट इज इजियर, साइन, using sine rule. साइन रूल, शाबाश, कोसाइन रूल दोबारा, बेटा लेंथ गिवन, कोसाइन भी लगा सकते हो, ठीक है दैट इज करेक्ट, कोसाइन भी लगा सकते हो, साइन भी आई बिलीव लगा सकते हो, लेट मी थिंक इफ यू कैन अप्लाई साइन, साइन भी लगा सकते हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो, इट्स अप टू यू व्हाटएवर यू फाइंड इजी। बेटा अगर साइन लगाना होता तो कैसे लगाते, व्हाट इज द नोन पेयर, कैन आई से दिस इज द नोन पेयर, यस और नो, ठीक है, एक ये नोन पेयर है, एक कोई मिसिंग वैल्यू निकाल लो, लेट्स सपोज दिस थीटा, सो दिस इज द अदर पेयर, ठीक है। सो इस तरीके से पेयर बनेगा, सो व्हाट इज द फॉर्मूला गोइंग टू बी, कैन आई से इट्स गोइंग टू बी sin थीटा ओवर 150, क्या होगा sin थीटा ओवर 150, 150 is equivalent to what, it is equivalent to sin 112 over 280, बात समझ आती है, yes or no, does this make sense, ठीक है। so थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा will be what, थीटा will be sin inverse of what, 150 times sin of 112, एक साथ मैंने कर दिया, कैलकुलेटर पागल हो जाएगा, जल्दी से बता क्या आंसर आया इसका, what is the answer for theta, थीटा क्या आया, what is theta for this part, what will be theta guys, कर लो जल्दी से, $29.78, चलो दिस इज व्हाट 29.78, इफ दिस इज 29.78, अब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग जाएगा ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है 29.78 ये होगा, आपको ये फाइंड करना है अननोन, दिस इज थीटा एंड देन वी हैव दैट लेंथ नोन एज द हाइपोटेन्यूज दैट इज 187, कौन सा रूल लगाओगे, कौन सा रूल लगाओगे, साइन, ठीक है। सो साइन से अप्लाई होगा, साइन थीटा sin of 29.78 absolutely correct is equals to unknown value upon of 187, what is that, length बता दो क्या है, length क्या है, let me check the answer as well, क्या length आई,
92.87, that is correct. ठीक है, so 92.9 is the answer. ठीक है, is this part clear guys? Any confusion? जल्दी से बताओ. Let me know if there is any confusion. कोई confusion यहाँ पे? But sir, it's 9 marks. Yes, wholly 9 marks. But sir, it was a right angle triangle, so we can still use sine rule. बेटा sine rule मैंने अप्लाई कहाँ पे किया, पहले ये देखो. मैंने साइन रूल अप्लाई किसके दरमियान किया? हिबा बच्चे, साइन रूल मैंने अप्लाई किया इस लेंथ और इस एंगल के दरमियान, इस एंगल और इस लेंथ के दरमियान. सो इट वाज स्टिल अ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल वेयर यू अप्लाइड साइन रूल लाइक दिस. डज दैट मेक सेंस? यस और नो? ये वाला साइन रूल, इस साइन रूल की बात कर रहे हैं, ये वाला जो हमने अप्लाई किया. माइक खोलो जल्दी से, बताओ बात समझ आई? ओपन योर माइक, आई विल क्लियर योर क्वेरी. Did she leave or who left? Someone else left. Any question? हिबा? अच्छा आप नीचे लिख रही, सॉरी, इट्स फाइन. चलो ठीक है, अब लास्ट पार्ट हो गया. वी आर डन विद द पेपर एनीवेज. सो कहता है Zara cycles distance of 500 meters correct to the nearest 5 meters. This takes 24.7 seconds correct to 1.1 second. Calculate the lower bound of the average speed. Average speed कैसे निकलती है बेटा? Average speed is equals to distance over what time. ठीक है, या total distance over total time कह लो तो ज्यादा बेहतर है. बेटा स्पीड हमारे पास फाइंड करनी है, सो डिस्टेंस ओवर टाइम करना है, लोअर बाउंड निकालना है. तो मुझे बताओ ये वैल्यू न्यूमरेटर में कैसी लेंगे? ग्रेटर लेंगे, स्मॉलर लेंगे? दिस हैज टू बी अ स्मॉल वैल्यू. और ये क्या लेंगे? बिग और स्मॉल. टाइम क्या लेंगे? टाइम विल बी बिग. ठीक है, गुड जॉब. स्मॉलर ऑफ डिस्टेंस, बिगर ऑफ टाइम. ठीक है, सो अब मुझे बताओ 500 इज करेक्ट टू 5. तो इसका मतलब क्या है? 500 के स्मॉलर वैल्यू क्या होगी? 5 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या बनेगा? 495. So what is going to be the lower bound of this? Lower bound क्या बनेगा? Can I say that is going to be middle value of this, which is 497.5. ठीक है, अब मुझे बताओ टाइम की अपर बाउंड. बेटा टाइम 24.7 में आपने 0.1 सेकंड ऐड किया तो क्या बनेगा? 24.8. इनके मिडिल वैल्यूज कैसे आएंगी? द मिडिल वैल्यू इज गोइंग टू बी समवेयर हियर, दैट इज गोइंग टू बी 24.7. डिवाइड कर लो, आंसर बता दो क्या है, जल्दी से बताओ. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? What's the answer, guys? क्या होगा आंसर? 20.1 करेक्ट है. Good job, 20.1. Is this part clear, guys? For 3 marks. I swear this paper was so easy, right? I hope you enjoyed the past paper today, and that is going to be it. I'll see you tomorrow, inshallah. अब प्लीज इस पेपर को देखकर खुशफहमी में नहीं